वही ओम शांति 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 हरि ओम चलो शिवानी you have to do the summary. Pranam Maharaj. My topic is India, our motherland. Maharaj, आवाज आ रही है? ठीक? हाँ आवाज आ रही है. ठीक है, ठीक है. Hinduism is the motherland of all that is noble, moral, and spiritual. The land in which godlike men still live and breathe. Can you tell any reason why India should lie in the ebb tide of the Aryan nations? Is she inferior in intellect? The national ideal of India are renunciation and service. Intensify her in those channels, and the rest will take care of itself. The Hindu nation is still living, having endured so many troubles and tribulations, and no one was able to destroy that. If our national life of these 10,000 years has been a mistake, then there is no help for it. And if we try to form a new character, the inevitable result will be that we shall die. The whole world requires light. It is expectant. India alone has that light, not a magic or mummery, but in the teaching of the glories of the real religion. The ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. We Indians suffer from a great defect. That is, we cannot make a permanent organization. And the reason is that we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone. I'm convinced that no individual or nation can live by holding itself apart from the community of others. Give and take is the law. And if India wants to raise herself, it is absolutely necessary that she brings out her treasures and broadcasts them among the nations on the earth. Hinduism is a great benefactor to India, and whosoever tries to bring the past to the door of everyone is benefiting himself. The degeneration of India came not because the laws and customs of the ancients were bad, but because they were not allowed to be carried to their legitimate contours. For the last 3/4 of a century, India has been bubbling over with reforms, societies, and reformers. But alas, every one of them has proved a failure. The only service to be done for the lower classes is to give them education. On our work depends the coming of the India of the future. She is only sleeping. Arise and see her seated here on her eternal throne, more glorious than she was, this motherland of ours. Make your nerves strong. What we want is muscles of iron and nerves of steel. The future of India depends on its youth. They will work out the whole problem like lions. I've given my life to it. Work as if on each of you dependent the whole work. Slowly but surely. I'm ready to undergo 100,000 rebirths to train up a single man. I don't care for mukti and all that. We now mostly need the ideals of a hero with the tremendous spirit of Rajas thrilling through his veins from head to foot. I am born to proclaim to these young men that fearless message: arise. Awake, the more opposition there is, the better. I want to send them rolling like irresistible waves over India, bringing comfort, morality, religions, education to the doors of the meanest and the most downtrodden. I am born to organize these young men, and hundreds of more in every city are already here to join me. But we must rouse India and the whole world. And I want to send them rolling like irresistible waves over India. You must not depend on any foreign help. Nations, like individuals, must help themselves. This is a real patriotism. Work unto death. I am with you.
and when I'm gone, my spirit will work with you. This life comes and goes. Wealth, fame, enjoyments are only of few days. It's better, far better to die on the field of duty, preaching the truth, than to die like a worldly worm. Advance. If you are really my children, you will fear nothing. Stop at nothing. You will be like lions. That's all, Maharaj. Pranam. Okay, that's all. जी. एक्चुअली ये जो स्वामी जी का है, ये हमने स्वामी जी ने नेशन के बारे में कई स्थानों पर कई बातें कही हैं। यहाँ पर उसको कंपाइल करके लोगों ने इस किताब में गॉड टू द नेशन जो है वो किया। और कल जो है स्वाधीनता दिवस है और आज़ादी का अमृत महोत्सव होने वाला है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये जूम मीटिंग में भी इसी को डिस्कस किया जाए। तो इसमें से कुछ पोर्शन हमने लिए थे। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद को इसको पढ़ने में दो बातें आ जाती हैं। एक तो ये है कि स्वामी विवेकानंद को भारत के प्रति बहुत गर्व था। एक्चुअली बड़ी मजेदार बात यह है कि स्वामी जी जब परिव्राजक होकर बेलूर मठ से निकले, अज्ञान सन्यासी उनका उद्देश्य था हिमालय में जाके और एकांत में कहीं पे जाके साधना करना, लेकिन वहाँ नहीं, वो सारे भारत का उन्होंने भ्रमण किया। सारे भारत का उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ, भारत की महानता का डायरेक्ट एक्सपीरियंस सुना, भारत के गरीबों को देखा, लेकिन भारत के उन्होंने उनके भारत उन गरीबों की भी जो निष्ठा है, धर्म के प्रति निष्ठा इत्यादि है, इसलिए उन्होंने स्वयं देखा और इसलिए वो इस कंक्लूजन पर आए कि भारत मरा नहीं है। और उसके बाद कहाँ पहुँचे? वो कन्याकुमारी में पहुँचे और कन्याकुमारी में बैठकर शिला पर उन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान किसका किया? तो वो तो ब्रह्म का ध्यान करने के लिए उत्तर में भारत में गए थे ना। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया? भारत माता का ध्यान किया, भगवान का भारत के राष्ट्र के रूप में ध्यान किया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने की बात है कि जिसको हम आंख बंद करके ध्यान करते हैं, वही स्वामी विवेकानंद ने सारे भारत में घूमकर उसको देखा। और इस यही बात यहाँ पर आती है, सब गरीब, सब दुखी, ये सब मेरे भाई हैं, ये मेरी आत्मा है। ये बात निरंतर स्वामी विवेकानंद के विचारों में आती है। तो भारत का उन्होंने चिंतन किया अपने कन्याकुमारी में बैठकर, और उसके बाद में अमेरिका गए। उसका उद्देश्य भी क्या था? भारत का उत्थान करना। और भारत का उत्थान करने से पैसा तो यहाँ से मिलेगा नहीं, मैं अमेरिका से पैसा लाऊंगा और इसको भारत की उन्नति करूंगा। तो सारा भारत, स्वामी जी जो हैं वो भारत से पूर्ण है। और वो कहते क्या है, बार बार कहते हैं इस चीज को कि अगर भारत मर जाएगा तो सारे विश्व से आध्यात्मिकता चली जाएगी, धर्म चला जाएगा। धर्म जो है भारत का प्राण है, रिलीजन जो है वो आत्मा, भारत का सोल है। वो वही स्वामी जी ने कहा था, रिनंसिएशन एंड सर्विस, त्याग और सेवा भारत के आदर्श हैं। और उसको दूर करने उपाय कर क्या है? गरीबों को उठाना। और बहुत सारे उपाय उन्होंने बताए, भारत की दोष भी उन्होंने बताए कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते, एक आदमी करना पड़ता है तो उसको नीचे खींचने का प्रयत्न करते हैं। एक है वो कहता है वहां चलो, सावधान, लग जाओ, एक नेता नहीं बन सकते, नेता तो है तो आज्ञाकारिता होनी चाहिए। ये सारी बातें, बहुत सारी बातें स्वामी जी इसमें कहते हैं। जो उसने और भी कहते हैं शिक्षा, स्वामी विवेकानंद बार बार शिक्षा की बात कही। उन्होंने यही कहा, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा, केवल मस्तिष्क में दिमाग चीजें भरना नहीं है, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा है। लोगों को, गरीबों को खाने को दो, उनको शिक्षा दो और अपने आप भारत महान हो जाएगा। तो ये बातें इस लेख में हैं और मेरा सुझाव है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। हम किसी भी प्रकार से हीन नहीं है, डिप्रेशन का भाव जी के हम कुछ नहीं कर सकते, ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये बार बार स्वामी जी कहते। तो अब हम प्रश्न कर सकते हैं।
जी ये तो तुमने पहले प्रश्न किया था। आर यू जी रेडी? जी प्रणाम महाराज। हाँ मेरा पहला प्रश्न है, द degeneration of India came not because the laws and customs of the ancients were bad, but because they were not allowed to be carried to their legitimate conclusion. So my question is, this is from the text, where from these oppositions used to come in? Is it from our own people or foreigners who ruled us? स्वामी जी ने खुद कहा है, जी we ourselves, oh not opposition. okay We did not practice them. अरे भाई धर्म में तो बहुत सारी बातें हैं ना। जी तो धर्म क्या है कि वो तो अपना स्वधर्म करना है ना। जी देखो धर्म का अर्थ यह है कि आप बैठ के मंदिर में जाना और माला जपना नहीं है। जी तो भगवान ने तो गीता में अर्जुन को कहा था कि स्वधर्म करो, और स्वधर्म यानी तो युद्ध भी होता है। जी तो अपना स्वधर्म करो, पूरे मन से करो, एकाग्रता से करो, अपने में आत्मविश्वास करो और करो। ठीक लेकिन ऐसा नहीं किया। ये हुआ कि जो हमारे साथ में लिखा हुआ है उसमें है, उसको हमने, हमारे शास्त्रों को हमने जीवन में नहीं उतारा। दूसरा है, बाहर से भी समस्या हुई थी। मुस्लिम रूल आया, ब्रिटिश रूल्स आया। तो पूछा जाए तो स्वामी जी क्या यहाँ पर कह रहे हैं ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों बातें हैं। एक तो बाहर से भी आक्रमण हुए हैं और वो हुआ, लेकिन उसमें भी क्या है कि उसमें आक्रमण में भी, यानी एक वो जयचंद और पृथ्वीराज की कहानी है, तो उसमें तो क्या है कि आपस में फूट है, और ये चीज बहुत हो रही है भारत में। एक दूसरे के पीछे पड़ना, दूसरे को नीचे गिराना, और बाहर के लोग जो आके उन्होंने राज्य करना प्रारंभ किया। तो राजनीतिक दृष्टि से हमने बहुत बड़े दोष किए हैं। हम एक साथ मिल के नहीं कर सके। ये बात स्वामी जी बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। पुनः पढ़ो तो, फिर अपना क्वेश्चन पढ़ो तो। The degeneration of India came not because the laws and customs of the ancients were bad, but because they were not allowed to be carried to their legitimate conclusion. Is that okay? I think that is okay. Yes, हाँ, that is okay. यानी लॉज जो शास्त्रों में लिखे गए हैं, नियम बनाए करे गए हैं, उनको हमने पूरा पालन नहीं किया, इसलिए हम सफर करते हैं। That is it. Okay? My second question is from the text. In their haste, they laid all the evils in our society at the door of religion. So my question is, though we know many evils made its place in our religion, but what exactly Swamiji wanted to say here? Very difficult to say. Okay. वो स्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म के कारण लोग न गालियां धर्म को देने लगे, ये धर्म के कारण ये सब हो रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो ये एग्जैक्टली स्वामी जी किस चीज को कह रहे हैं, हाँ ये कहना मुश्किल है। अच्छा। और सच पूछा जाए तो धर्म में भी जो कहा है कि हमने पूरा धर्म को पालन करना भी छोड़ दिया था, ये बात भी ठीक है। सिर्फ क्रिया अनुष्ठान को ही धर्म लेने लगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्वधर्म भी तो धर्म है, युद्ध करना भी धर्म है, चरित्र निर्माण करना भी धर्म है। कुछ छोड़ के केवल क्रिया अनुष्ठान करना है, गंगा स्नान करना है, विश्वनाथ का दर्शन करना है, यही धर्म हुआ, बाकी सब धर्म छूट गया। नैतिक जीवन को व्यतीत करना, ये सब धर्म है। लेकिन ये सब छोड़ के जब क्रिया अनुष्ठान करने लगे तब समस्या उठ जाती। तो इसलिए लोगों ने कहा कि धर्म के कारण सब बर्बाद हुआ। स्वामी जी कहते हैं धर्म के कारण नहीं, धर्म को हमने ठीक ठीक अपने जीवन में नहीं उतारा। धर्म नैतिक जीवन भी है, धर्म युद्ध करना भी है, स्वधर्म भी है, ये हमने नहीं किया, इसलिए हम कष्ट पाए। ठीक है जी। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द टेक्स्ट,
let us bless them and profit by their experience until all the Hindu race becomes extinct and a new race takes possession of the land. Such a thing can never be. Try east or west, India can never be Europe until she dies. Yes. So now my question is, this para is not very clear. Please explain. Means this paragraph is not Now your question, what is your question? Question is, this part is not very clear. Please explain. Again, The paragraph is again reading. मैं paragraph फिर से पढ़ रही हूँ. Let us bless them and profit by their experience until all the Hindu race becomes extinct and a new race takes possession of the land. Such a thing can never be. Try east or west, India can never be Europe until she dies. Now your question is, what is your question? To explain this part. अगर तुम यूरोपियन बन It गए, is not very. यानी यूरोप की जीवन पद्धति ले ली उन्होंने, हम सब ब्रिटिश हो गए, सब कपड़े हमारे यूरोपियन हो गए, खाना पीना यूरोपियन हो गया, हाँ, सब चिंतन भी यूरोपियन हो गया, तो फिर हम भारत कैसे रहे? वो तो मर जाएंगे, भारत खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारा प्रश्न क्या है इसमें? जी, मेरा प्रश्न केवल ये कि ये पूरा पैराग्राफ मुझे ठीक से समझ में नहीं आई। नहीं, ये तो ऐसा है कि अगर तुम भारत विदेश से थोड़ी चीज तो लेनी है। स्वामी जी कई जगह यही बोलते हैं कि हमें भारत विदेशों से बहुत कुछ सीखना है जी। वो लोग कितना कर्म करते हैं, कितने लगे रहते हैं, कितना एक साथ मिलकर काम करते हैं, ये सारी चीजें उनसे सीखना है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह विदेशी हो जाएं। अगर विदेशी हो जाएंगे तो भारत रहेगा ही नहीं, भारत मर जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। हिंदू भी मर जाएगा। हाँ। अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रणाम महाराज जी। अच्छा, सुबीर मजूमदार। हाँ, प्रणाम महाराज जी। महाराज, पहला सवाल है on page 91, Swamiji says that only through religion, politics, municipality work, plague prevention work, famine relief work is to be done. मतलब all this work has to be done through religion. When he says this, does he mean renunciation and service by religion? एग्जाम्पल लो ना, वाराणसी सेवाश्रम। जी। वाराणसी सेवाश्रम में रोगी नारायण की सेवा की जा रही है। जी। हॉस्पिटल चलाया जा रहा है। जी। थ्रू रिलीजन। हाँ, वही रिनाउंसिएशन एंड सर्विस। नहीं, ऐसा नहीं कि केवल सन्यासी करते हैं। जी। सेवा रूरल को ले, सेवा रूरल भी तो रिलीजन के बेसिस के ऊपर काम कर रहा है। जी, बिल्कुल। तो वो लोग रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, उनके श्राइन भी बना रखी हैं, लेकिन सब गृहस्थ हैं। जी। उन्होंने कोई संन्यास तो नहीं लिया है ना। जी। नॉट केवल रिनंसिएशन एंड सर्विस तो इम्पोर्टेंट है, वो तो राष्ट्रीय आदर्श है। रिनंसिएशन और सर्विस किसी न किसी प्रकार से तो गृहस्थ हो या सन्यासी को उसको अपने जीवन में डालना पड़ेगा। नो डिफिकल्टी अबाउट इट। रिनंसिएशन सर्विस, अगर आप गृहस्थ हो तो भी आपको किसी न किसी प्रकार का रिनंसिएशन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा और भी कई चीजों का रिनंसिएशन करना पड़ेगा और सर्विस करनी पड़ेगी। तो ये तो आदर्श है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत सारी इंस्टीट्यूशन रामकृष्ण मिशन चला रहा है ना। जी, बिल्कुल चला, यानी विवेकानंद यूनिवर्सिटी भी चल रही है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, कॉलेजेस, बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है कि जितने सेक्युलर एक्टिविटीज हैं वो भी रिलीजन के माध्यम से हो सकती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसी प्रकार से सब कुछ जो कार्य है, स्वामी जी कहते हैं धर्म के माध्यम से करो। Is that okay? Absolutely, Maharaj. That's what I thought also. Just wanted the clarification. क्योंकि एक हाउसहोल्डर भी अपने लेवल पे रिनंसिएशन करके और रिलीजन के बेसिस पे सेवा कर सकता है। यही बात। जी महाराज, बिल्कुल। Second question, Maharaj ji, was
on page 93, he says he has seen a vision on India where it is rejuvenated, more glorious than ever. Now, have we come anywhere near that stage? No, abhi still time. Acha. I mean, we have not become 100% glorious. Okay. You So know, what? हाँ. ऐसा है कि अगर तुम अभी मेरे पास रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स है कम, यानी 1950 के जो इंडियन स्टैटिस्टिक्स थे एजुकेशन के, पॉवर्टी लाइन के सब, और अभी मेरे पास 2012 के स्टैटिस्टिक्स आए हैं, किसी ने, स्वामी जी ने एक भेजे हैं, सब चार्ट्स भेजे हैं, तो उसमें काफी चेंज हुआ है, यानी एजुकेशन स्टेटस चेंज हो गया है, एक इकोनॉमिक स्टेटस इंडिया का चेंज हुआ है, ये डेफिनेट चेंज हुए हैं। लेकिन स्वामी जी जो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा ग्लोरी, यानी पुराने ग्लोरी से तो ज्यादा हो ही गया है एक प्रकार से, लेकिन और भी बाकी है, ऐसा नहीं है। यानी अभी भी जो है 30% लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे है, 30% लोगों की एजुकेशन अभी नहीं है, यानी अनएजुकेटेड है, ये सब चीजें बहुत सारी अभी भी हैं। याद रखो, इतना बड़ा कंट्री है यार, ये इतने 5 ईयर प्लान्स हुए हैं, इनका प्रभाव तो डेफिनेटली हुआ है, तो ग्लोरी जो है वो डेफिनेटली बढ़ी है। लेकिन ये कहना कि भाई पुरानी ग्लोरी से अधिक ग्लोरी हम तो जानते नहीं है, पहले की ग्लोरी में हम महाभारत और रामायण को ही समझते हैं, लेकिन उसके अलावा कॉमन मासेस कैसे थे उस जमाने में, ये तो हम नहीं जानते ना। जी महाराज। और इस दृष्टि से देखा जाए तो कॉमन मासेस, स्वाधीनता के बाद में कॉमन मासेस की कंडीशन डेफिनेटली इंप्रूव हुई। तो महाराज ये तो हुआ एजुकेशन, इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी जैसे आप कह रहे हैं। तो रेजुवेनेशन के इसके अलावा भी कोई चिन्ह है जो द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी? अब सोसाइटी में ऐसा है कि भाई लोगों का मटेरियल चिंतन बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है, और धार्मिक चिंतन भी, अब धार्मिक चिंतन तो बना ही हुआ है जी। यानी आप कुंभ मेला देख लो, माघ मेला देख लो, अभी जो ये बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अभी जब ये अपने चतुर्मास में जो इस प्रकार के लोग, कितनी भीड़, कितने लोग आते थे, इससे ये तो निश्चित है कि धार्मिक हमारा जो बेस है वो पक्का है, पहले जैसा ही है, इसमें कोई इतने सारे होते हैं, दिवाली है और जो भी बाकी जो सेलिब्रेशन हमारे जितने भी हैं वो सब धार्मिक ही है, उसके बेस के ऊपर ही है। तो इस दृष्टि से वो भाव बना हुआ है, और थोड़ा सा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ न कुछ तो हुआ है जी। मैंने स्टैटिस्टिक्स देखे, उसमें डेफिनेटली डेवलपमेंट हुआ जी। मेरा इसी से फिर रिलेटेड है कि इफ स्वामी जी वेर अलाइव टुडे, हाउ वुड ही हैव व्यूड इंडिया? अब ऐसा है कि स्वामी जी जो है वो इंडिया को तो बहुत सारा प्यार करते थे, पहले भी प्यार करते थे जी, और अभी भी प्यार करेंगे, और अभी ज्यादा ही प्यार करेंगे जी जी जी। लेकिन वो गाली भी देंगे वेरी डिफिकल्ट टू से। स्वामी जी उस समय प्यार करते थे, खुश भी होंगे कि चलो कितना डेवलपमेंट हुआ, बहुत प्रसन्न होंगे, अरे मैं जब गया था तो कुछ भी नहीं था, रहने के लिए जगह नहीं थी, ये सब होगा, सब देखो आज रहने के लिए कितनी जगह हो गई, मकान हो गए हैं, लोगों को खाने मिल रहा है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, इतना सब हुआ है, वो सब स्वामी जी देखेंगे तो सही और खुश भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर गाली भी देंगे वो कौन से इश्यूज को लेके गाली देंगे महाराज? अभी भी देखो इतने लोग अभी भी गरीब हैं जी जी जी, so many still poor, कोई लेके कहेंगे, और तुम लोग धर्म को छोड़ रहे हो, यानी धर्म है तो भी स्वामी जी बोलेंगे धर्म को छोड़ रहे हो। अच्छा। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी। महाराज, और अभी वी आर कॉपिंग द वेस्टर्न पीपल, उसमें भी स्वामी जी गुस्सा होंगे। हाँ वो तो ठीक है, वो स्वामी जी ये भी तो कहते थे कि वेस्ट से हमको कुछ लेना है, अच्छा चीज नहीं ले रहे हम लोग, खराब चीज ले रहे हैं, खराब चीज ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग उल्टा ही कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, यानी इंडस्ट्रियल स्टेट में, यानी और ये एरोनॉटिक्स में इंडिया का बहुत डेवलपमेंट हुआ, ये बराबर है। तो बहुत सारा डेवलपमेंट, इसमें कोई शक नहीं। स्वामी जी देखेंगे कि हाँ
हमें भौतिक दृष्टि से मैं चाहता था स्वामी इंडिया महान बने, वो अच्छा है, बन रहा है। हाँ महाराज जी, ये साइंटिफिक में भी देखिए वैक्सीन वगैरह जो बना है, ऑल दीज पॉइंट टू दैट। हाँ हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। जी महाराज। महाराज लास्ट क्वेश्चन है पेज 101 पे। स्वामी जी कहते हैं, माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, आई हैव फॉर्मुलेटेड द आइडिया and given my life to it. They will spread from center to center until we have covered the whole of India. Here does Swamiji mean young renunciating monks only or householders too? बोथ दोनों को। दोनों। वो तो स्वामी जी कहते हैं माय फेथ इन द यंगर जनरेशन। जी। लेकिन सच पूछा जाए तो यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन भी, लेकिन वो करेंगे नहीं। लेकिन स्वामी जी दो गृहस्थ और सन्यासी दोनों चाहते हैं। जी, क्योंकि वो कहते हैं सेंटर टू सेंटर, इसलिए मैं कह रहा था, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ऐसा है। देखो भारत में आज जो हैं वो करीब 2000 रामकृष्ण मिशन के सेंटर हैं जी, और कितने रामकृष्ण मिशन के प्राइवेट सेंटर्स हैं, यानी जो सेवा किसके बोलते हैं उसको ना? जी जी हाँ, भाव प्रचार समिति। कितने ज्यादा है बोलो? बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फिर जी ठीक है महाराज, ये समझ तो युवक लोग ही चलाते हैं, योग भी चलाते हैं, सीनियर लोग भी सब चलाते हैं। हाँ बिल्कुल महाराज जी। हाँ तो दोनों आवश्यक। हाँ, सेवा रूरल इज अ वेरी गुड एग्जांपल आल्सो। थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज। अच्छा, अब सतीश। प्रणाम महाराज। बोलो महाराज, my first question, it is the same which Swamiji asked. Shall India die? I am saying so because Swamiji also said, मैं ठीक से करो तो are आवाज not young generation aping the material civilization of West. अच्छा ठीक महाराज, ठीक पास में से बोलता हूँ महाराज। Swamiji says, asked the question, shall India die? My question is also the same. Are not our young generation aping the material civilization of West? Is not duality of lust and luxury hailed as deities, with money its priest and fraud, force, corruption, competition its ceremonies? So amidst these problems, can we say that India shall die? तुम बहुत पेसिमिस्टिक हो भाई। करप्शन और ये सब चीजें ही दिखती हैं। अरे सोचो तो इंडिया कितना बड़ा है। हाँ? इंडिया कितना बड़ा है, या सोचो तो उसकी तुलना में कितना करप्शन है। कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। उसके अलावा इतना तो डेवलप हुआ है, यूथ जो है इतना सब कर रहे हैं। पर मटेरियल सिविलाइजेशन भी हमारी अब डेवलप हो रही है हमारा, मटेरियल मेंटल एटीट्यूड भी हमारा डेवलप हो रहा है। इट इज रिप्लेसिंग द आवर रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल जो हमारी थी कॉन्सेप्ट्स थी, उसको रिप्लेस कर रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं ऐसा तो मेरे को नहीं, मैं ऐसा है ना कि मैं तो फील्ड में नहीं हूँ। जी। और मैंने लोगों से डिस्कस किया, युवा वर्ग से, तो वे लोग भी ये तो कहते हैं कि थोड़ा इधर उधर की गंदी बातें भी आ रही हैं, और सारी जो काम कांचन के ऊपर वेस्टर्न यानी युवक लोग जो हैं उसके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। वे सब वो लोग बोलते तो हैं, लेकिन भाई ये हमेशा था, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले नहीं था। ये सभी समय सब ये आकर्षण और टेम्पटेशन ये हमेशा रहते थे। तो ये कहना यानी बहुत मुश्किल है। जब तुमने कहा ना कि भाई इंडिया की गेटिंग डाउन, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब जैसे हम इम्पोर्टेंट है
और बहुत सारे यूथ एक्टिविटीज हो रही हैं, रामकृष्ण मिशन के यूथ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अभी आज ही यहाँ पे प्रोग्राम है 10:30 बजे, और अगली बार 10 बजे जो यूथ प्रोग्राम होगा उसमें मुझे बोलना है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अगली बार मुझे 10:20 के आसपास, 10:15 के आसपास मेरे को छोड़ दीजिएगा। अभी मैं पहले बोलता हूँ, यानी मतलब ये है कि अगली बार का प्रोग्राम हम 8:45, 8:45-9 बजे करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है? यस यस महाराज। हाँ ठीक है। तो यूथ एक्टिविटीज सब जगह हो रही है, यहाँ पे भी काफी हो रही है। और अब ऐसा है कि अब पहले जमाने से अब वीडियो और टीवी और मीडिया जो है इसके कारण समस्या तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो पेसिमिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज, ठीक है, पॉजिटिव मैं समझ गया महाराज। ये महाराज जी, क्वेश्चन हुआ। महाराज जी, रीटा वाधवा हमारे ग्रुप में है। आई डोंट नो इफ शी हैज जॉइन्ड टुडे, so she takes parts in program with youth in the Ramakrishna Mission Delhi. Maybe she can say what she has seen later on. क्या अभी है क्या गीता वाधवा है क्या? अभी नहीं दिख रही है आज, नहीं। अच्छा नहीं आई आज जी। अच्छा Okay. ठीक महाराज, मैं समझ गया कि नेगेटिव चीजों के साथ पॉजिटिव चीजें भी बहुत हो रही हैं। जैसे हमारे एक मिनट बहुत सारे, नहीं दूसरा क्वेश्चन पूछो तो फिर से करो। हाँ जी महाराज, जैसे मतलब कि बहुत सारे यूरोपियन जो है हमारी कल्चर को अपना रहे हैं, ऐसा भी है। हमारे रिलीजन को, हमारी कल्चर को यूरोपियंस अपना रहे हैं। हम अगर वो यूरोपियंस को फॉलो कर रहे हैं तो वो भी हमें कहीं न कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो देयर इज नथिंग टू बी पेसिमिस्टिक अबाउट इट। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया महाराज। हाँ Yes. Second question, Maharaj, page 90. What is the use of keeping the soul of the nation in a religion? This the question Swami asked. my question, Maharaj, is: shall religion continue to be foundation of our social and political fabric, or it would be eroded by secularism or atheism? The same question है almost. और स्वामी जी ने तो जवाब खुद दे दिया है ना कि the river has come down for thousands of miles from its source in the mountains. Does it or can it go back to the source? हजारों साल से धर्म हमारा प्राण रहा है, यू ना, सोल ऑफ द नेशन जो है वो रिलीजन में रहा है। क्या आप उसको बदल सकते हो? बदल नहीं सकोगे, ये तो सोचो। जी तो इतना हो गया ना 100 साल में भी। अब जब अगर आपका कुंभ मेला होता है तो करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं। यहाँ पे तो अभी ये मैंने जब जैसा कहा, ये श्रावण का में इतनी भीड़ भड़का इतना सब होता था धर्म के ऊपर की बस। तो ये तो धर्म के बिना तो चलेगा नहीं। तो दूसरा पॉलिटिक्स में या सोशल उसमें इंडिया का सोल आत्मा नहीं जा सकता। पॉलिटिक्स और सोशल वो तो है, ये आवश्यक है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन दैट कैन नॉट बी द सोल ऑफ इंडिया। ये मेरा कहना है। एक्चुअली ये सेक्युलर की बात कह रहे हो ना, तो पॉलिटिकली तो हम सेक्युलर स्टेट हैं ही, लेकिन धर्म तो प्राण है। सेक्युलर स्टेट होते हुए भी यहाँ पे तो धर्म जो है, इस्लाम हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो और हिंदू हो, सब लोग धार्मिक तो है ही, अपने मजे से धर्म का आचरण करते हैं। पॉलिटिकली सेक्युलर हो गया तो उसमें क्या दिक्कत? राइट मार, ठीक मार। पेज नेक्स्ट क्वेश्चन मार, पेज 97. In our books there is the doctrine of universal equality, but in work we make distinctions. In India that's unselfish and disinterested work of the most exalted type was preached, but in practice we are awfully cruel, awfully heartless. Maharaj,
नेक्स्ट पेज 95 में स्वामी जी कहते हैं jealousy is the bane of our national character, natural to slaves. महाराज my question is ये तुम्हारी जो slave mentality है ये कब चेंज होगी, ये कब बदलेगी? अब भाई मैं नहीं जानता कि बाहर में क्या है, तुम बाहर में हो तो पता नहीं, तुम समझ सकते हो इस चीज को, लेकिन भाई ये तो जानो भारत में सुनो, भारत में डेमोक्रेसी तो हो गई है ना, सबको एक वोट है, राइट। तो गरीब जो है और जो पिछड़ा हुआ है, जो मेहतर है, वो भी एक वोट है, मेरा एक वोट तो है। हाँ जी। और इतना तो आसान नहीं है कि उनको जबरदस्ती तुम करवा लो। और गरीबों और जो गरीब हैं, मेहतर हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे वोट के ऊपर आगे वाला आने वाला आदमी निर्भर करता है। कौन करेगा? वो लोग भी जब इलेक्शन होता है ना तो उनको पैम्पर करते हैं, हमारे को वोट देना, हमारे को वोट देना, और वो लोग भी डिसाइड करते हैं कि हम किसको वोट देंगे। तो इतना अधिकार तो हो गया, स्लेव मेंटेलिटी कहाँ रही? नहीं महाराज, नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल राइट्स तो दे दिए, सोशल राइट्स तो दे दिए, इकोनॉमिक राइट्स भी दे दिए, लेकिन हमारी जो मेंटालिटी है, we do not feel proud of ऐसा है कि culture, we नहीं वो तुम जैसा है, गरीब है, नहीं ये अगर हमने तरक्की करनी है तो प्रश्न ये है कि तुमने पड़ेगा। जाना है क्या उनको? उनकी मेंटालिटी को तुम कैसे जानते हो? तुम अभी जानते हो क्या 100 साल के बाद में फ्यूडल मेंटालिटी या स्लेव मेंटालिटी अब है कि नहीं है? ये तुम कैसे जानते हो? मैंने तो प्रमाण दिया है कि वो लोग इलेक्शन के समय जानते हैं कि हम भी हैं, हमारा भी एक वोट है। सो धनिष्ठ लोग चाहे कोई भी कहे, हम अगर मिलके एक हमारे इलेक्शन में हमारे लीडर को बदल सकते हैं। अरे एक आदिवासी जो है वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हाँ, तो फिर फ्यूडल मेंटालिटी का कहाँ प्रश्न होता है? इसका तुम्हें प्रमाण देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं, तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। मेरा ये क्वेश्चन है। जी महाराज, इन आवर सोसाइटी महाराज, वो सोसाइटी वी लिव इन, वी मतलब कि हम जो है डू नॉट यूज फेयर मींस ऑफ डेवलपमेंट, वी यूज अनफेयर मींस। वी जो है वो हम मतलब कि चापलूसी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जहाँ पर चापलूसी करवाना चाहते हैं। ये मेंटालिटी में इसको कह रहा हूँ। अरे ये 1000 इतने वर्षों की गुलामी, स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा है, इतने वर्षों की गुलामी में चापलूसी कहो, काला बाजारी कहो, किसी को घूस करके काम करना करो, ये तो आ जाती है। स्वयं स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ये एक दिन में क्या दूर होगी? और इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, इसमें फिर भी प्रगति तो हो रही है और जम के हो रही है। कुछ न कुछ तो एजुकेशन सिस्टम को हम अप्रूव नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। काला बाजारी होगी, घूस होगी, ये तो होगा ही। तो क्या करोगे तुम? We should have a positive thinking. We should have a positive thinking. हाँ, यही तो। वो तो अब कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा, क्या करोगे तुम? और तुम लोग जो फील्ड में है वो लोग जाते हो तुम। अब पहले 50 साल पहले कितना था, अब कितना है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो नई जनरेशन के हैं, हम कुछ देखते हैं, लेकिन पहले क्या था उसको कहना बड़ा मुश्किल। महाराज जी, आजकल हम क्लास 4 एम्प्लॉइज को देखते हैं, उनका एटीट्यूड हैज चेंज्ड कंप्लीटली इन द लास्ट 30-40 इयर्स। हाँ, दे आर मच मोर इंडिपेंडेंट, मच मोर डिसाइसिव। अब वो स्लेव मेंटालिटी उनमें तो दिखता नहीं है। हाँ, वही तो मैंने कहा, मैंने तो ऐसे ही कहा कि भाई इलेक्शन की बार सोचते हैं कि हमारा भी एक वोट है, सब मिल के हम डिसाइड करेंगे किसको हम इलेक्ट करेंगे। तो हमारे जो लोअर क्लास हैं वो कहेंगे कि हमारे 15% वोट तो अपने हाथ में है, देखें कौन किसको अपन सिलेक्ट करते। महाराज, हाँ, मुझे लगता है कि एजुकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। सब एजुकेशन जितना आगे बढ़ेगा उतना सब इंडिपेंडेंट और होंगे। लोअर क्लास एजुकेशन तो अभी तक भी उतना नहीं गया है सब गांव में। नहीं, अब जितना भी गया है भाई,
मैंने पता है अभी स्टेटिस्टिक्स आए थे, अबाउट 60-65% एजुकेशन होने लग गया, 70% के प्रति एजुकेटेड होने लग गया। और गांव में अगर मैं पहले जाता था, कई वर्षों पहले गया था, गांव में स्कूल्स तो हैं भाई, मैं तो गांव स्कूलों में जाके प्रवचन देता था और स्वामी विवेकानंद के स्कूल है पर टीचर नहीं है महाराज, बहुत प्रॉब्लम भी है, टीचर्स आर वेरी लेस। देखो भाई इतना बड़ा देश है, हाँ वो कुछ न कुछ तो होगा, धीरे धीरे होगा जी। हो गया सतीश, हुआ नहीं हुआ तुम्हारा सतीश? गॉन सतीश जी गायब हो गए। हाँ सतीश जी कट गए हैं, अभी फिर ज्वाइन करेंगे तो देखा जाएगा। महाराज भी नहीं दिखते। नहीं महाराज तो हैं, महाराज तो है वीडियो जी। हाँ अच्छा तो फिर यस महाराज, प्रणाम महाराज। हेलो महाराज, कैन यू हियर मी? महाराज नहीं दिख रहे अभी तो। हाँ आ गए महाराज। हाँ महाराज, my first question is, like as we are discussing, materially we have progressed quite a bit, but has the material progress been achieved through a corresponding improvement in our moral character? What is the meaning? What is your question? Question is, Swamiji said that improve your moral character and progress will happen. Now, in this last so many years, 125 years from then, we have made material progress to a great extent, but is it through a corresponding improvement in our moral character? अब ये भाई तो ये कौन डिसाइड करेगा? हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा। कौन डिसाइड करेगा? I cannot tell you, I don't know. महाराज जी मेरा ये कहना है कि this is absolutely a political discussion if we go on this line. वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो discussion है, absolutely wrong. ये जो बातचीत हो रही है ना, ये एक ऐसी चीजों के लिए हो रही है। I don't like this discussion which is going on. It is what I No. सतीश ने भी जो है वो political sort of questions raise किए थे। No, you know, in this स्वामी जी के ideas के ऊपर discuss किया जाए, उसका effect कितना हुआ कितना नहीं हुआ है। No, obviously Maharaj, like Swamiji, like a prophet, whatever he said at that time, like I as a preface I have written that this is the article most appropriate for discussion on the eve of Independence Day. The collection shows Swamiji more as a social reformer. Here he is talking more on social aspects than a spiritual teacher. But with him, everything is spiritual, even matters related to the mundane problems of daily life. Swamiji's incisive analysis is very clear, and one cannot find fault with the prescription for going ahead. And more than a century, after more than a century, we have made a reasonable progress in all the pressing problems of that time. Like this article shows us the way, and I think India has progressed on those lines only. My question is that certain things he says in our society, do we see that? Like he said that you improve renunciation, spirit of renunciation and service, you will find that things are improving. So we find that we have improved through management techniques, we have improved through 5-year plans and material prospects. So prosperity to aa gaya hai. But has it correspondingly improved our moral character? That was the question. ना मेरा ये कहना है कि भाई देखो, मैं तो ये देखूंगा, स्वामी जी ने कहा है कि improve your moral character,
मैं Yes, देखूंगा कि हैव आई इम्प्रूव्ड माय मेरा मॉरल हाँ कैरेक्टर बस बस personally, yes. पर्सनली। आई है ये एकदम रिनंसिएशन ठीक है। सर्विस लोगों के लिए उन्होंने स्वीकार किया या नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं रिनंसिएशन सर्विस कर रहा हूँ या नहीं, मॉरल Okay. कैरेक्टर मेरा इम्प्रूव Okay. हुआ या नहीं, और मैं Okay. देखूंगा कि मैं अभी भी देयर आर लॉट ऑफ गैप्स, Yes. आई एम फार बिहाइंड व्हाट आई ought to have done what स्वामी जी said। तब दूसरे के क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम? हमारी यही हालत है, हाँ, इंडिविजुअली हमारा यही हालत है कि हम स्वामी जी के आदर्श पे नहीं आए हैं, हम ढीले ढाले बने हुए हैं अभी भी। इस तरह आप देखिए अब okay. राष्ट्र में क्या हो रहा है, ये आप करने के बाद दूसरी। Okay. Now, like from that point of view, then my subsequent questions do not have any meaning because that is on the present state of society. I was trying to find out that after so many years, like it's a collection of Swamiji's writing, and Swamiji found certain, like in your introduction also you said, Swamiji found out certain weaknesses in our character, national character, and certain solid spiritual values. Like if you see, Swamiji said that India will export spiritualism and bring materialism. That has actually happened. I think India earns quite a bit of, if you consider monetarily, through their spiritual teachers, not only of Ramakrishna Mission, many teachers of many sects, they are preaching outside, and West, if बंद हो गए। बंद हो गया, सुनाई नहीं दे रहा। You are mute, Mr. Kundu. okay. Hello. हाँ, So हाँ, ठीक है। I was telling that the way you said, obviously whatever Swamiji has predicted, that has exactly happened, that we have imported technology from the West and we have exported spirituality to the West, and it is to a great extent on an equal footing. If our businessmen are doing business over there, if our spiritual teachers are able to preach over there, if our students are going and competing at their universities, I don't think we are doing any less. And Swamiji maybe foresaw this progress. So when we take it on these ideas in our individual life, then of course, like we need to introspect and think about us, think about improving us. And in that case, my subsequent questions, like what is the state of society today, does not hold good anymore. Yes. Okay. Your next question. Next question, he says, the giants of religion are the men of power. Can we say this in our society today? Again, this is a question of the social conditions. क्यों अभी भी जो है वो रमन महर्षि और क्या क्या सब आजकल है ना, बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे गुरुजी तो हैं इंडिया में, अभी भी तो पैदा हो रहे हैं कि नहीं? हो रहा है महाराज, वो भी अभी भी तो गाइड कर रहे हैं। और पहले जमाने में जो थे वो तो ऋषि लोग होते थे और जितने राजा होते थे उनसे गाइडेंस करते थे, ऋषि लोगों की सेवा करते थे। तो इस प्रकार से स्वामी और ठाकुर जो है वो ठाकुर तो अभी भी है, और एक पावरफुल जैसे कहते हैं ना कि जायंट, स्पिरिचुअल जायंट है स्वामी ठाकुर। तो ठाकुर का प्रभाव तो सारे विश्व में पड़ रहा है, तो इस दृष्टि से उसको देखा जाता है। ओके महाराज, यस महाराज। और वो एक तुम्हारा क्या है, नॉट मनी इवन, यानी नेशनल आइडियल की क्या है? तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या था? रिनंसिएशन सर्विस के बारे में था क्या? I said, have we been able to follow the principles of renunciation and service? स्वामी जी ने बोला है 80% लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि आइडियल क्या होता है जीवन में। यस महाराज। वो जो बचपन से चला आ रहा है, धर्म को स्वीकार किया है, तो धर्म में जितनी सेवा हो जाती है, त्याग हो जाता है, धर्म का तो बेसिस ही है त्याग का, वो उनको जो मिला है बचपन से, उसके अनुसार वे लोग कर रहे हैं रिनंसिएशन एंड सर्विस।
लेकिन कोई नहीं जानता कि हमारा आदर्श रेनुन्सिएशन सर्विस है, वो हमारे धर्म के माध्यम से सबको प्राप्त होता है। इसके अलावा ये कहना बड़ा मुश्किल है। Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. And last question, Maharaj. Why is religion seems more divisive than inclusive? सुनाई नहीं today? दिया, सुनाई नहीं दिया। I said, why is religion seems more divisive than inclusive today? I am talking about the society in general. Why do you say India में तो India is a country in so many religions are living peacefully. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इतने तो रहे हैं, कहाँ रॉयट्स, पॉलिटिकल रायट्स ये कहाँ आजकल तो हो ही नहीं रहे हैं। For Yes, years ma'am. together there had not been religious riots. और यहाँ पे एक अमेरिकन आया था, फादर पेनिंगटन, तो उसको मैं ले गया था जैन टेम्पल में, और Yes, वहाँ ma'am. पे उसको मैंने कहा था, और हिंदू यूनिवर्सिटी से कुछ प्रोफेसर आए थे, मैं था, वो था, मैंने उसको कहा कि आप हमारे क्रिश्चियनिटी के बारे में, आपका जो सेंटरिंग मेडिटेशन है उसके बारे में कुछ बताइए। तो जानते हैं उसने क्या प्रारंभ किया था? उसने कहा था कि टू सिट इन ए जैन टेम्पल, ए क्रिश्चियन प्रीस्ट sitting in a Jain temple and teaching his method of meditation to professors of Hindu religion, Hindu university can happen nowhere in world except in India. Okay, Maharaj, that's great. That's Very great. So even why do you say like that? So many people we are living together. Yes, Maharaj. कहाँ झगड़ा होता है? कुछ तो नहीं होता। हिंदू मुसलमान अपने फ्रीली नमाज करते हैं, हिंदू अपने ध्यान जप करते हैं, तो चल तो रहा है। अब तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कहाँ पे डिविजिव फोर्सेस हो रही? कुछ नहीं है। जो पॉलिटिकली होगा, बदमाशी करेंगे, ये बात दूसरी होती। हाँ, थोड़े लोग ऐसे रहेंगे। So many are living, यानी ऐसी चीज विदेश में असंभव है, सोच ही नहीं सकते। असंभव है, बराबर। ठीक महाराज। Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. दिलीप भाई जी प्रणाम महाराज जी। यस महाराज जी, मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोरो द लैंटर्न ऑफ द एथेनियन सेज डायग्नोजिनस? ये हाँ, ऐसा है कि ये 200-300 BC में, यानी ईसा के पहले की बात है। हाँ। ग्रीस के एक फिलोसोफर थे जी, डायग्नोजिनस, हाँ, एथेंस में रहते थे, जी, और वो एक यानी नकारात्मक टेंडेंसी था, सिनिक बोलते हैं ना, सब हाँ। में दोष देखना। तो जी, वो क्या कहते थे कि वो क्या करते थे कि उसके पास एक लैंटर्न, उसके पास एक वो थी, एक लालटेन। मैंने इंटरनेट में देखा, उसको फोटो भी है। और हाँ। रहता कहाँ था मालूम है? एक ये अपने ये जो जमीन के नीचे जो बड़े बड़े वो डालते हैं ना, वो टनल बनाने के लिए जी, बड़े बड़े जो उसे गोले डालते हैं, क्या कहते हैं उसको? इट इज लाइक केव्स, गुफा। नहीं, उसके नीचे जैसे जमीन के अंदर से अगर तार वार डालने हो, करने हो, तो हाँ। बहुत बड़े बड़े गोल गोल वो होते हैं ना, एक टनल जैसे बनाते हैं। हाँ, कंडुइट पाइप जैसे लगा देते हैं। कंडक्ट पाइप जैसे बड़े बड़े, उसके जी। अंदर वो रहता था। आधे कपड़ा पहनता था, बंदर कुत्ते आसपास आते थे, उनके साथ खाता था, पागल जैसा था। लेकिन वो क्या, एक लालटेन लेके सबके सामने जाता था, यानी लोगों के सामने लालटेन ले जाता था, उनका चेहरा देखता था। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, क्या कर रहे हो, कि मैं ईमानदार आदमी को देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ। जी, तो भले हम सब लोग भले दिखना चाहते हैं, सच्चा सबको सदा सच्चे सब हाँ। समय रहना चाहिए, ये वो देखना चाहते थे। जी, कि वो यानी एक प्रकार से लैंटर्न लेके लोगों को, अच्छे लोगों को खोजता रहता। बराबर। स्वामी जी यही उसी को बात कहते हैं हाँ। कि मैं उस डायनोजिनिस के लैंटर्न लेके लोगों को सामने देखने का प्रयत्न करूं। ओके, फिर से पढ़ो, उसको हो गया सेंटेंस। महाराज ये तो हो गया लैंटर्न ऑफ द एथेनियन सेज डायग्नोसिस। अच्छा महाराज जी, इसमें मेरा ये एक सवाल था, जैसा आपने कहा
कि मैंने भी गूगल पे देखा तो ही वाज नॉट वन, देयर वर 6 पर्सन्स। यदि आपने पूरा वो गूगल में इसका स्टडी की हो तो उसमें ये बताया था ये डायोजिनस एक नहीं थे, ये 6 लोग थे और टर्न बाय टर्न दे वर डूइंग समथिंग। इट इज नॉट और क्या वो इसी प्रकार का ढूंढने निकले हुए थे 6 जने। हाँ हाँ, अच्छा, सजेस्ट। हाँ हाँ 6 लोग थे, बाप रे। हाँ 6 लोग थे ये। पर करते तो यही थे ना, ढूंढते ही थे ना। हाँ यही लैंटर्न लेके निकले थे ढूंढने के लिए कौन है, एक व्यक्ति भी उन्हें ढूंढना था। अच्छा अच्छा, राइट राइट। तो लेकिन यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि मैं भी घूमूंगा, हाँ, देखूंगा क्या करने का है, कि Yes. मैं कहूंगा कि ऐसे विद्वान व्यक्ति, ऐसे संत जो हैं भारत में संत हुए हैं, राइट will die this mother old mother of all this noble moral spiritual, they shall we die? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या है कि उसमें भी पहले महान महापुरुष पैदा हुए थे, अभी भी पैदा हो रहे हैं, ये मैं देखने के लिए निकलूंगा, ये बात है। अच्छा, पर ये लिखा है show me such men in other lands if you can। अरे भारत में ऐसे दुनिया में महान कहीं नहीं पुरुष हैं, मिलेंगे। आपको विदेशों में कहाँ मिलेंगे? कहीं भी नहीं ये कहने मिलेंगे। का मतलब है राइट कि विदेशों की तुलना में भारत जो है वो संतों से भरा हुआ है। बना हुआ। Yes. My next question is on page number 89, blessings behind and peace before it। हाँ हाँ, वो ये नहीं नहीं, उसमें क्या है, वो एक कहावत हो गई है। अच्छा क्या है कि स्वामी जी कह रहे हैं हाँ कि even from then till now ideas after ideas have marched out from her India, but yes, every word has been spoken with a blessing behind and and it and peace before it। यानी भारत में यदि जितना भी उपदेश वगैरह दिया है वो हाँ। शांति और आशीर्वाद के साथ ही दिया है, ये कहने का मतलब। जी यानी ब्लेसिंग का ये संसार के सभी प्राणियों के प्रति आशीर्वाद और शांति का संदेश भारत से गया है, ये मतलब। right जी महाराज। Now my third question is page number 90। We always speak Roman civilization, Egyptian civilization and Greek civilization and like that. They all have fallen and vanished. But we have not heard much of Hindu civilization which has vanished. Is Indian civilization at any time vanished? ये इसमें अरे, यहाँ पे तो सनातन- इसमें ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह तुमने लगाया है, वो तो है नहीं इसमें। नहीं इसमें नहीं है महाराज जी। मेरा ये सवाल है कि ये हिंदू सिविलाइजेशन जिस प्रकार से ये सिविलाइजेशन खड़ी हुई और खत्म हो गई, वैसे इंडिया की सिविलाइजेशन कभी खत्म हुई थी क्या? अरे नहीं, कभी इंडिया नहीं। की सिविलाइजेशन, स्वामी जी ये बार बार तो यही तो बोल रहे हैं कि इंडिया की सनातन धर्म। सिविलाइजेशन कभी खत्म नहीं होगी। हम्म, ये ग्रीक रोमन और ये सब सिविलाइजेशन आई और चली आए गई, और चले गए। हाँ that is भारत की what my- सिविलाइजेशन कभी खत्म नहीं होगी, अच्छा जी यही जी। तो बार बार बोलना चाहते हैं स्वामी जी। हाँ, and it is because it is based on the religion। हाँ, बेस्ड ऑन रिलीजन। हाँ Religion. Yes, J. Now my next question: when our society was led by giant sages in religion, then how it has fallen? Page number 92 पे लिखा हुआ है। क्या है? एक मिनट, पेज नंबर 92 के ओपनिंग पैराग्राफ में लिखा है, I have seen your parliament, your senate, your vote, majority, ballot. It is the same thing everywhere. My friend, now the question is this: who are the men of power in India? They who are giants in religion. It is they who led our society, and it is they again who change our social laws and usage when necessity demands, and we listen to them silently and do what they command. हाँ, इसका मीनिंग क्या लेंगे? मतलब ये है हाँ कि पार्लियामेंट होवे, इलेक्शन होवे, होता रहे, जी, लेकिन एक महात्मा गांधी ही चला रहा है। यस, महात्मा गांधी ने कितने वर्षों तक, 50 वर्षों तक भारत को प्रभावित किया। जी, यस, आजकल भी जो आध्यात्मिक लोग हैं वो प्रभावित करते हैं। पार्लियामेंट की बात स्वामी जी उड़ा रहे हैं,
हाँ यानी जब एक कुंभ मेला होगा, संत जाएंगे, और आजकल क्या क्या संत है बाबा तुम ही जानो, तुमको ज्यादा आइडिया है, और तब बता रहे हैं तो किताब खोल के आप पढ़ लो, प्रवचन जी। दिख जाएंगे तुमको, लोग सब सुनते हैं और वही लोग चलाते हैं, पार्लियामेंट करे ना करे कोई चिंता नहीं करता। ये बात कह रहे हैं स्वामी। बराबर जी। अच्छा, राइट, ओके। मैं माय नेक्स्ट क्वेश्चन, expansion of life, contraction is death, love is life, and hatred is death. We commence to die the day we begin to hate other races, and nothing can prevent our death unless we come back to the expansion, which is life. Page 96. Now my question is, we want to live, love our other races, but they do not want to reciprocate and they hatred us. They say that their religion is superior. Then what to do with such fanatics which we find in the world? वो तो चलने दो ना, फेनेटिक्स तो रहेंगे ही, अच्छा फेनेटिक्स रहेंगे ही। जी। हिंदू धर्म में तो फेनेटिक है ना। हाँ, यहाँ पे भी वैष्णव लोग जो है ना, वैष्णव लोग जो हैं कि शिव जी को हाथ प्रणाम भी नहीं करेंगे। यस यस महाराज, बिल्कुल ये है ना। यस। तो फिर हिंदू मुसलमान क्यों बात करते हो? हिंदुओं में भी है कि जो वैष्णव है शिव जी को प्रणाम नहीं करेंगे। जी। और हमने तो ऐसा सुना है कि कोई जो हिंदू कोई साधु आता है तो माता जी जो जैन जो वो होते हैं ना, जैन माता जी लोग, हाँ। तो वो हाथ प्रणाम करते हैं तो हाथ में रुमाल रख लेते हैं जी कि जी दिखेगा प्रणाम, लेकिन एक्चुअली प्रणाम नहीं है। बिल्कुल जी जी महाराज तो जी, ऐसे correct। ऐसे फेनेटिक जो हिंदू में है, मुसलमान में भी है, जैन में भी है, वैष्णव में भी, सब में ही है। तो क्यों अच्छा। चिंता करते हो? सब एक साथ रह रहे हैं, चलने दो बाबा। ओके ओके ओके, राइट महाराज जी, राइट। नहीं, ये जो स्वामी जी ने लिखा है, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ एंड हेट्रेड इज डेथ। हाँ हाँ, तो अगर तुम जो लोग इतने कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं कि हम विष्णु को, कृष्ण का भी जो बाल रूप है उसी को प्रणाम करेंगे, कृष्ण का जो राधा कृष्ण का रूप है उसको प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्टेड लोग हैं तो रहे कॉन्ट्रैक्शन, क्या करेंगे? दे आर लाइक डेथ। जो उदार होगा वो सबको स्वीकार करेगा। हाँ, नहीं तो वो तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार मेरा है, केवल वैष्णव है मेरे हैं और बाकी नहीं है, ऐसा नहीं जी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ये व्यक्ति के लिए है, निर्भर करता है। और इस दृष्टि से तो भारत जो है ना वो बहुत उदार है। बहुत जी महाराज। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम पेज, स्वामी जी सेज no amount of politics would be of any avail until the masses in India are once more well educated, well fed and well cared for. इसका मीनिंग क्या होगा महाराज जी? यानी पॉलिटिक्स करो, हाँ, लेकिन अगर लोगों को आप स्कूल नहीं दे सको, खाने को नहीं दे सको, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सको, तो पॉलिटिक्स के फायदा होगा। तो पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी, राष्ट्र में भी अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है नहीं होगी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो ये भारत में स्वाधीनता के बाद में डेफिनेटली बढ़ा है। तुम्हारा आप प्रश्न क्या है? नहीं, ये महाराज मेरे को पूछना था, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिक्स वुड बी ऑफ एनी अवेल अंटिल द मासेस इन इंडिया आर वेल एजुकेटेड, वेल फेड एंड वेल केयर्ड फॉर। यदि तब तक ये नहीं मिलेगा वहां तक कुछ लाभ नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। पॉलिटिक्स से क्या लाभ होगा? बराबर, चलिए। लेकिन उसके बाद तुमने एक प्रश्न और किया। हाँ, बहुत खिलाओगे पियाओगे, सबको खाना पीना दे दोगे तो लोग आलसी बन जाएंगे। जी महाराज, मेरे इसके अंदर 2 सवाल और थे कि इफ इट इज नहीं, इट इज लिंक्ड लाइक दैट कि ये चीजें देना चाहिए, यदि ये फ्री मिलती है तो ये आलसी बन जाएंगे सब। अब भाई आजकल के जमाने में क्या, ऐसा मैंने सुना है यस कि एक बार सुना है मैंने, कोई आदमी जो है वो एक रोज में 70 रुपए कमाता है। हाँ,
50 रुपए तो व्यय करता है, 220 रुपए बचता है, उसमें शराब पी लेता है। जी अब भाई ये भारत में शराब पीना जो है ना, वो दुनिया, विदेशी दुनिया की तुलना में बहुत कम है, हाँ यस ये याद रखना। जी जी महाराज तो इतने ऐसे लोग जो इतने आलसी है ना, ये इतने ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। जी अब जमाना बदल गया, विदेशों में, भारत वहां पे जाओ आप, हाँ। फिर अपने गांव में जाके देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, या जो गांव में काम करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। हाँ, काफी बदला है महाराज, काफी बदलाव है, काफी डेफिनेटली काफी बदलाव। बदलाव यस एंड इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ रिलीजन, इट इज आल्सो बिकॉज ऑफ रिलीजन, हाँ ठीक है। धर्म के कारण। जी my next question, what Swamiji has found when he says the poor in the west are devils, compared to them ours are angels, हाँ इसका मीनिंग क्या महाराज जी? जो गरीब अमेरिका में जो गरीब है ना, हाँ वो शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे और हत्या करेंगे, उनको कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ पे गरीब हैं, भिक्षा मांगेंगे, कुछ मिल जाएगा, खा लेगा, सो जाएगा, लेकिन क्राइम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, ये मतलब। ओके इसमें हिंदी में लिखा है, भारत के सभी अनर्थों की जड़ है जन साधारण की गरीबी। पाश्चात्य देशों के गरीब तो निरे पशु है, उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब तो देवता है। ठीक है। हमारे यहाँ के गरीबों की उन्नति करना अपेक्षाकृत सहज है। यस तो यही हो तो गया। जी बराबर। नेक्स्ट, until all the Hindu race becomes extinct and a new race takes possession। महाराज आधा सवाल का जवाब पहले दिया था, पर उसका कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है। ऑफ द लैंड such a thing can never betray east or west, India can never be Europe until she dies। हाँ रिलीजन नहीं छोड़ सकते इंडिया, वो तो हो चुका है, डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे मैं बता रहा हूँ, इंडिया जो है कभी यूरोप नहीं बनेगा, यूरोप मर गया तो इंडिया मर जाएगा, मर जाएगा। Yes. Now my further question is, it appears that Swamiji is fully influenced by West and Europe। Are Europeans be good for Swamiji or they are worst? उनके नजर में ये अग्नि तो क्या दिखते थे? ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि स्वामी जी ने देखा यूरोप में कुछ इम्पोर्टेंट अच्छी चीजें हैं जो भारत को लेना है। वो लोग अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के काम कर सकते हैं एक साथ। भारत वाले एक साथ काम नहीं करते, अनुशासन नहीं है भारत में, विदेश में है। स्वामी जी कहते थे कि विदेशों का अनुशासन लो, कर्म करो, और विदेश को कहते थे कि भारत का धर्म लो। ये दोनों से एक दूसरे से लेना है, लेकिन अपना जो स्वरूप है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। राइट। आज जो है भारत, सारा भारत के जो रिलीजियस सेक्ट्स है ना वो विदेशों में फैले हुए हैं, मालूम है ना। वो तो ये तो स्वामी जी चाहते थे, और हमें भी भारत से लेना है, मिलजुल कर काम करना है, डिसिप्लिन करके काम करना है, ये सब भारत से, विदेशों से हमें सीखना है। ओके राइट महाराज। अब इसके अंदर फर्दर है, एट वन प्लेस स्वामी जी सेज लिविंग स्पिरिचुअलिटी यू विल एक्सटिंक्ट, and he also says let us work hard, this is not time to sleep। then where is time for spirituality? If we start working hard, where will be the time for spirituality? And if we work hard, then there will be a material prosperity। so again no time for spirituality, because then time will be consumed in enjoying the material prosperity। अरे ऐसा थोड़ी होता है। भारत, स्वामी जी ने देखा है कि भारत को इमीडिएट आवश्यकता है मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की, खाने को नहीं है। तो उन्होंने कहा एग्रीकल्चर करो, मेहनत करो, और भारत को भौतिक दृष्टि से बढ़ाओ। तो उससे क्या धार्मिकता नष्ट हो जाएगी? 1000 साल की धार्मिकता के स्पिरिचुअलिटी क्या नष्ट हो जाएगी? वो नहीं नष्ट हो जाएगी, वो बनी रहेगी। कुछ नहीं हो रहा है, सब धार्मिकता बनी रही है, बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है। जी बराबर जी महाराज। एंड my last question is, we have to go beyond rajas as Vedanta says, but here Swamiji speaks for rajas, so rajas is important in our life। क्या 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 कहा? पेज नंबर 102 पे है। हाँ क्या है बोलो। हाँ 102 का फर्स्ट पैराग्राफ है,
we now mostly need the ideal of a hero with the tremendous spirit of Rajas, हाँ thrilling through his veins from head to foot. The हाँ hero हाँ ठीक है will dare and die to know the truth. हाँ So yeah, Rajas is very important in life. Why हाँ you to go beyond Rajas? अब तो वो छोड़ो, अब तुम अभी वो जा बाद रजस में। पे आओ। अरे अभी तो तमोगुण में बैठे हुए हो, और तमोगुण में बैठे हुए हो, अचानक रजोगुण में नहीं जा सकते, सत्वगुण में नहीं जा सकते। अरे लगो ना, काम करो, तब सत्वगुण आएगा। 100% रजोगुण आएगा, तब बाद में आएगा सत्वगुण। चिंता मत करो। Okay. हाँ, Right. चिंता मत करो। हाँ जी बस महाराज। अच्छा, महाराज रीता वाधवा मैडम ज्वाइन कर ली हैं। सुबीर मजुमदार सर उनसे कुछ सुनना चाह रहे थे। कौन ने ज्वाइन किया? रीता वाधवा मैडम जो दिल्ली में रामकृष्ण मिशन में वैल्यू एजुकेशन करती हैं। बात है, वो बोलना चाहती हैं क्या? जी बताइए क्या? सुबीर सर जय माधव ठाकुर। महाराज जी, मैं ये कह रहा था, रीटा जी वर्क्स विद द नहीं, यूथ। अभी और क्वेश्चन है उसके। हाँ महाराज जी, आप जब कहेंगे तब पूछ लीजिएगा महाराज। हाँ, बाद में ये भी क्वेश्चन आंसर हो जाए उसके बाद। हाँ जी महाराज। प्रणाम प्रणाम। देवाशीष साहा। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, देवाशीष साहा। महाराज जी प्रणाम। अभी मेरा 7 क्वेश्चंस, उसमें से 3 निकल गया, 3 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, but today it may have sprung a leak and got damaged through your own fault or whatever cause, it matters not. What is the leak or hole in the ship Swamiji is talking about? क्या कहा है? इसमें एक जगह है, this national ship of ours, yet ye children of immortals, my countrymen, has been plying for ages, carrying civilization and enriching the whole world with its inestimable treasures. For sources of shining centuries, this national ship of ours has been ferrying across the ocean of life and has taken millions of souls to the other shore, beyond all misery. But today it may have sprung a leak and got damaged through your own fault or whatever cause, it matters not. तो मेरा क्वेश्चन है, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस लीक ही इज टॉकिंग अबाउट? लीक बहुत सारे तो लीक हैं, यानी एक साथ हम काम नहीं कर सकते। जेलसी है, गरीबों को हम सोचते नहीं हैं। ये सब सारी बहुत सारी है। गरीब हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं, प्राणहीन देश है, यानी ये तो वो है। स्वामी जी कितने से दोस्त खुद ही बताते हैं ये लीक हो गए हैं। यानी हमारा जो नेशनल शिप है वो जो बहुत अच्छा था, लेकिन हम धीरे धीरे उसको यानी क्या किया, वही जो है ना लीक किया। कि खास करके ये बात है कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते, जेलसी आ गई है, ये चीजें बातें हो गई। बहुत सारे डिफेक्ट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तमस भी आ गया है, तमस ज्यादा आ गया है, मतलब जेलसी, बैकबाइटिंग, ये सब गुण आ गया है। तमोगुण। विदेशों को आने दिया हमने, हम लोग संयुक्त नहीं हुए, एक दूसरे के बैकबाइटिंग करते रहे, विश्वासघात करते रहे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे दृष्टांत मिलेंगे। समझ में आ गया वो जयचंद और पृथ्वीराज की बात, कहानी तो प्रसिद्ध है। हाँ महाराज जी, ठीक है महाराज जी, इसको समझ में आया। थैंक यू महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you will find that there also that hidden under the ashes of apparent death, the fire of our national life is yet smoldering. Page number 91. हाँ, तो ये मतलब ये about to die and then the fire is still there, माने there is a little hope, ऐसा बात समझिए क्या बोल रहा है। मतलब my question is, what is meant by hidden under the ashes of the apparent death? स्वामी जी बोलते हैं कि हमारे जीवन का जो प्राण की अग्नि है वो अभिराख क्या है? गुलामी, गरीबी, प्राणहीन देश हो गया है। अच्छा, प्राय मृत प्राय देश है। ये पढ़ा है, गरीब था, उसने जो गुलाम हो गया था, इतने कष्ट में था, लेकिन इसके पीछे अभी भी आग सुलग रही है, आग जल रही है। कौन सी आग? आध्यात्मिकता की आग जल रही है।
रिलीजन, अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज, थैंक यू। आध्यात्मिकता की आग जल रही है ऊपर, चाहे कुछ भी गरीबी है, दुख है, सब कुछ है, पता नहीं चलती, लेकिन आध्यात्मिकता का आग अभी भी जल रही है। अच्छा अच्छा, थैंक यू महाराज, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 99, carry the light and the life of the Vedanta to every door and rouse up the divinity that is hidden within every soul. Is it not that Swamiji is talking about to give up everything and lead a monk's life? तो मैंने अभी बात डिस्कस कर लिया, ये सभी के लिए है। रिनंसिएशन है, सर्विस जो आइडियल है, केवल रामकृष्ण मिशन के लिए, सन्यासियों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। आपने बताया महाराज जी, थैंक यू महाराज सभी जी। के लिए है, ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाराज जी, पर डिवोटी कैनॉट टेक द लाइट ऑफ वेदांता टू एवरी डोर बिकॉज दे विल नॉट। क्यों नहीं करेंगे? रामकृष्ण मिशन ने करेंगे। केवल वो क्या अभी कहा ना है क्या, रामकृष्ण मिशन के तो 2000 सेंटर हैं, हाँ, लेकिन 800 सेंटर जो हैं वो इसके हैं भाव प्रचार परिषद के। भाव प्रचार परिषद के सेवा रूरल की मैंने बात कही, तो वो लोग तो सेवा कर रहे हैं, ये सारी बातें स्वामी विवेकानंद के आदर्श को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग। प्राइवेट सेंटर्स, प्राइवेट सेंटर्स आर रन बाय द गृहस्थस। That's true. That महाराज जी, पर मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, सपोज वेदांतिक थॉट्स एंड टीचिंग्स व्हेन इट कम्स फ्रॉम ए मॉन्क्स माउथ, it becomes a very, that is all right, but monks कितना करेंगे? monks ऐसे कितना करेंगे? गुजरात में सब 3-4 सेंटर्स हैं, लेकिन उसके आसपास जो है बड़ौदा में है, उसके बाद में थोड़ा झगड़िया में है, ऐसे 4-6 और भी सेंटर्स हैं बहुत सारे पास जिसमें मॉन्क जाते हैं, एक बार चले गए, महीने में 2 महीने में एक बार, बाकी वो लोग करते हैं सब। अच्छा, प्राइवेट सेंटर्स हैं और रिलीफ कर रहे हैं, वो प्रीचिंग करते हैं, क्लासेस करते हैं, स्कूल चलाते हैं, ये सब गृहस्थ लोग करते हैं, बीच में सन्यासी चले जाते हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी, हाँ, अरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ, समझ में आया महाराज, थैंक यू। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 100. Feel my children, feel for the poor, the ignorant, the downtrodden. Feel till the heart stops and the brain reels, and you think you will go mad. Then pour the soul out at the feet of the Lord, and then will come power, help, indomitable energy. Do this feeling come without sadhana? माने ये सब जो फीलिंग्स स्वामी जी ने बताया, ये तो नॉर्मल लोग को आता ही नहीं जब तक वो रिनंसिएशन एंड साधना नहीं करेंगे। तुमने स्वामी विवेकानंद का साहित्य कितना पढ़ा है ये बताओ तो। मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुमने स्वामी विवेकानंद का कितना साहित्य पढ़ा है? साहित्य महाराज जी, ऐसे तो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी जी तो पूरा पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल पढ़ा है, और जहां जो पढ़ा स्वामी का साहित्य? नहीं, ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल ऐसे तो होगा नहीं। ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल तो उसका है, वो तो वो भी स्वामी विवेकानंद का नहीं है, ये तो उसका मेरी लुई बर्ग का है। हाँ, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल। कंप्लीट वर्क्स नहीं पढ़े? कंप्लीट वर्क्स बीच बीच में पढ़े हैं, शुरू से लेके अंत तक ऐसा नहीं पढ़े। अब पढ़ो, सुनो, पढ़ोगे नहीं और ऊपर से बोलोगे, प्रतिदिन पढ़ो। हम लोग आज बुढ़ापे में, इस उम्र में आजकल रोज प्रतिदिन 15 मिनट 20 मिनट स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ते हैं। इस बुढ़ापे में 3 बार पढ़ चुके हैं, तीसरी बार तो सब वचनामृत पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद को नहीं पढ़ेंगे, चलता नहीं ऐसा। ये सब पढ़ो ना तुम तो, ये तुम्हारा क्वेश्चन ही उठेगा नहीं। तुमको इतना जोश आएगा अपने जीवन में कि बस, अरे अभी भी इस बुढ़ापे में हम पढ़ते हैं तो रोज जोश आता है। बातें कर रहे हैं। कर्मयोग पढ़ो, राजयोग पढ़ो, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पढ़ो। वो पढ़े जोर से पढ़ो। अब एक बार पढ़ने से नहीं होता, रोज पढ़ना चाहिए उसको, रोज पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को 15 मिनट रोज पढ़ो तो ये प्रश्न नहीं करोगे तुम, कुछ समझ में आ जाएगा।
तो एक नॉर्मल आदमी का सर महाराज जी ये फीलिंग्स तो आता नहीं है जब तक ये कुछ साधना नहीं करेंगे। अरे नॉर्मल तो एबनॉर्मल आदमी नहीं, नॉर्मल आदमी, नॉर्मल आदमी, एबनॉर्मल आदमी नहीं, नॉर्मल आदमी, सब आदमी, कोई भी आदमी पढ़ेगा। अरे मैं बताता हूँ तुमको, मेरे को जो किताब मिली है स्वामी विवेकानंद की, जिसको मैं पढ़ के हुआ हूँ, ये एक गृहस्थ ने मेरे पिताजी को दी थी, उनके मित्र ने, और वो गृहस्थ थे, वो रोज पढ़ते थे, और उन्होंने एक एक कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद एक वॉल्यूम अपने मित्रों को देते थे। वो मेरे पिताजी के पास आई और मैंने उसको पढ़ी और मैं साधु बन गया। इसके बाद सज्जन से मिला था, सरदार सिंह कोठारी नाम, तब तक ये मिल शुगर मिल के मैनेजर हो गए थे। वो कहते थे कि मैंने, जब मेरे को किसी ने किताब फेंकी थी तो मैंने सड़क पे पीड़े, किसी ने पड़ी हुई थी सड़क पे, यानी मैं जा रहा था तो एक बूढ़े ने किताब फेंकी और कहा कि ले जाओ इस किताब को, इसको पढ़ के मेरा लड़का साधु बनना चाहता है। मैंने उठाई तो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम था, मैं पढ़ने लगा, मेरा सारा जीवन बदल गया। और अभी भी गृहस्थ हैं वो। हम जिस प्रोफेसर के साथ डॉक्टर वी.एन. टंडन के अंडर में हमने सुपर स्पेशलिटी एम्स में किया था, वो प्रतिदिन कट पढ़ते थे, पढ़ेंगे नहीं और बकबक करेंगे, बात करेंगे। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद का सबको पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। फिर बात करेंगे, इसके पहले नहीं होगा। बिना स्वामी विवेक का पढ़े वचनामृत को कोई नहीं समझ सकता। प्रणाम महाराज जी। अच्छा, अब कौन है भाई? है देवाशीष हो गया। एक मिनट, दिलीप भाई हो गए, सुनील मजूमदार हो गए, ईतू हो गई, शिवानी हो गया, शिवानी हो गया जी। शिवानी जी महाराज, नहीं हुए अभी। क्वेश्चंस बताओ, चलो क्वेश्चन तुम्हारे। Maharaj, first question है, if a person is always doing moral deeds and very sincere for the work assigned to him or her and have patriotism in the blood, but never did meditation on soul or initiated, so is this kind of person should continue with his or her work or should turn towards meditation for spiritual benefits? नॉट नेसेसरी। कर्मयोग पढ़ो, स्वामी विवेकानंद का कर्मयोग पढ़ो, उसमें तो स्वामी जी मेडिटेशन की बात करते नहीं है। हाँ, दो उसमें तो वो कंडीशन यही करते कह हैं। रहे हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं स्वामी जी, कर्मयोग में कोई नहीं करते हैं। वो कहते हैं जैसा निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो करते रहो, पर ये करो कि मुझे अनासक्त होना है, मुझे अनासक्त होना है, मुझे अच्छा नहीं है, ये अनासक्ति का प्रैक्टिस करो। या फिर कहते हैं कि जो कर्म करो उसको कर्म और कर्म का फल भगवान को समर्पित कर दो। भगवान गीता में जो है अर्जुन को बोलते हैं, वो ध्यान तो बाद में आता है, लेकिन उसके पहले तो कर्म की ही बात करते हैं ना। भगवान के लिए मैं यहाँ पर समोभूत, मेरे लिए सब कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो, उसमें ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर? जी महाराज। Next question, when we used to do meditation, then at times we want to sit for more time, but due to some other responsibilities, we cannot afford more time. On the other hand, when we have plenty of time due to holidays, etc., we are unable to sit for long. So what to do? Is it God's willingness for that day? यानी रेस्टलेसनेस, पहले दूसरे प्रश्न का जवाब दो। रेस्टलेसनेस के कारण हम टाइम मिलता है तो भी नहीं बैठ पाते हैं, तो ये मन का डिसिप्लिन, मन इरेगुलर है, ये मन की शैतानी है। तो बी वेरी केयरफुल, अपने रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर आपको काम थोड़ा समय मिल जाए, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किसी दिन आपका मध्याह्न अच्छा हुआ लेकिन जाना पड़ेगा ना। यानी ये मतलब है कि कभी तो ध्यान, मन जो है वो ध्यान में लग रहा है, कभी ध्यान में मन नहीं लगा है, ये नहीं होने देना। यानी वेरी विचित्र बात है कि जब ध्यान का समय नहीं है
तब मन कहता है ध्यान करो, और जब ध्यान का समय है तब मन कहता है कि मत करो। तो ध्यान ही तो तुमको, जब मन ही तो तुमको नचा रहा है, तो उसको मन को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट। महाराज, जो कल आपका पतंजलि वाला था लेक्चर, उसमें इसका थोड़ा सा आंसर था। उसमें आपने कहा था कि ये जो साधक है उसके उसमें आते रहेंगे, अनुभव होते रहेंगे उसे इस तरह के, और साधना में लगे रहना है। हाँ, कल आपका जो है। आंसर था वो ये। हाँ। बाधाएं तो बाधाएं हमेशा आएंगी। हो गया? ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन। When we learn to live a very simple life with minimum basic requirements to avoid wastage of time and cut down public dealings to the minimum, so that we can focus more or devote maximum time towards God or spiritual practices, etc. So is it okay? I mean, it is healthy thinking, because as others do not think like this. नहीं, वो तो संसारी लोग तो संसारी ढंग से सोचेंगे, और उनको लगेगा कि ये तो संसार से विरुद्ध जा रही है, ये तो निर्वृत्ति हो रही, तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे उसको। ये तो निश्चित है। अगर आपका डिसिप्लिन जीवन है, आप भगवान में मन लगा रहे हो, अपनी ड्यूटी तो कर रहे हो, लेकिन संसारी लोगों से मिलजुल रहे हो, कहीं शादी ब्याह में नहीं जाते हो, पार्टी वगैरह में नहीं जाते हो, तो लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग कह रहे ये क्यों नहीं आ रही है, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा ना, इसमें कोई बात। हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि इट इज बहुत सारे लोग साधक को मेरा प्रश्न ये था महाराज, हाँ, ये नॉर्मल है ना, मतलब अगर हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं इस तरह का कुछ। हाँ, स्वाभाविक रूप से चेंजेस आएंगे। ठीक है, हमारे चिंतन में चेंजेस आएंगे। हो गए तुम्हारे प्रश्न? अच्छा महाराज, प्रश्न और हैं छोटे छोटे। हाँ, एक तो वो था, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ डिसाइपल एज पर ज्ञान योगा और राज योगा, थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, नहीं, वो तो ज्ञान योग के अनुसार तो वो है ना, साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय नहीं मालूम? नहीं पढ़ा वो। विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति। अच्छा, साधन चतुष्टय, ये तुमको मिल जाएगा नेट में। ठीक है। विवेक, वैराग्य, मुक्ति की इच्छा, मुमुक्षुत्व, और षट संपत्ति में क्षमा, तमा, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये छह गुण। ये है प्रिपरेशंस फॉर ज्ञान योग। ओके, ठीक है महाराज। और राजयोग का है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये 5 जो यम हैं, ये राजयोग की प्रिपरेशंस हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक्चुअल राजयोग का मेडिटेशन। इज इट ओके? जी महाराज। समझ में आया कि नहीं? महाराज, हाँ, आ गया। महाराज, लास्ट क्वेश्चन. As you said in the last on Sunday, you were giving some answer to some of the devotee that after 10 years or so, if we are sincere for the God, then definitely we will realize it. So I know a lady who is very pious, and I observed her since my childhood. She is doing meditation in early hours and before sleep also without telling anyone. But I think no results. So how we can say this? Like what we can say on this? ऐसा है कि ये देखना पड़ेगा कि वो जो है वो, यानी ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि सारा जीवन निष्ठा पूर्वक करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। ऐसी बात नहीं है। वो आज से 25 साल पहले जैसी थी, उससे तो कंप्लीटली चेंज हो गई कि नहीं हो गई?
हाँ, उसमें तो उससे है पूरा फर्क। चेंज हो जाता है, अंदर का परिवर्तन हो जाता है। बाहर ईश्वर दर्शन जो है ना, वो तो लाखों करोड़ों में एक होता है। और उसके लिए क्या है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है वैराग्य और मुमुक्षुत्व। याद रखना, व्याकुलता और मुमुक्षा यानी मुक्त होने की इच्छा, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता, ईश्वर दर्शन की इच्छा और वैराग्य, ये दो बहुत बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ऐसा कोई रियल नहीं, वो नियम नहीं है। और मैंने पता नहीं किस संदर्भ में बताया होगा, ये भी मैं नहीं कह सकता। यो तो कहे है कि जो भी एक किसी भी साधना को 12 वर्ष तक मन वचन से काया कर से करो तो उसमें प्रतिष्ठित हो जाओगे। यदि तुम अहिंसा का मन वचन काया से साधना करो तो 12 वर्ष में तुम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उसके बाद में तुम्हारी प्रतिष्ठित अवस्थिति में दूसरे लोगों का बैर नाश हो जाएगा। सत्य प्रतिष्ठा में तुम जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठा में वीर्य लाभ होगा। ये ऐसा जो पातंजल योग सूत्र में कहा है वो है मन वचन काया से 12 वर्ष तक करने पर होता है। तो मैंने किस संदर्भ में 10 वर्ष की बात कही ये कहना महाराज मुश्किल आपने है, लेकिन नहीं, अगर आपने कोई रियलाइजेशन के लिए कहा था। हाँ बोलो। वो आपने रियलाइजेशन के लिए कहा था, रियलाइजेशन के लिए कहा था आपने। रियलाइज क्योंकि आप सुन रहे थे रियलाइजेशन कि के लिए अगर हाँ मिठाई है उसको खाओगे तभी तो पता चलेगा। तो मतलब आपने कहा था कि 10-12 साल आप लोग करो तो फिर आपको रियलाइजेशन तभी ना होगा, ऐसे करके कहा था। नहीं, वो तो एक जनरल स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट, यानी कुछ हाँ। थोड़ा थोड़ा करने से नहीं होगा, लगे रहो तब तो तुमको कुछ अच्छा रहेगा, आनंद आए, कुछ मिलेगा। नहीं है कि भगवत दर्शन हो जाए। ओके, ठीक है महाराज, थैंक यू महाराज। हेलो। हाँ और ठीक भी है कुछ महाराज, हमारे थैंक कर्म यू। और 4-5 और भी बाद में तुमने वैराग्य 3 का ही प्रश्न भेजे पूछ, थे, और भी कुछ थे ना, वो 2-3 महाराज प्रश्न पूछ और लिए बाद में भेजे। ओके ओके ठीक। पहले अच्छा, अब वो निवेदिता। जी महाराज। हाँ जी, पहला प्रश्न है, इन अदर कंट्रीज ऑल्सो सेंट्स आर बोर्न, then why Swamiji has emphasized so much about the saints of India? If it is so, अरे सेंट तो इंडिया में भरपूर है। गांव में संत होते हैं। इंडिया में तो गांव में संत हैं जी। तब If it चले is जाओ, so, तुम कभी what is गांव the में जंगल reason? में जाओ, चले जाए हैं। What is the बिकॉज धर्म reason? जो है आध्यात्म, भारत का Very good. प्राण है धर्म। जी जी। इसमें क्या है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रीजन ऑफ एज स्लम्बर डीप स्लीप ऑफ इंडिया? ये जो तमोगुण में भारत चला गया उसका क्या कारण था? बिकॉज धर्म को ठीक से आचरण नहीं किया। धर्म को क्रियाकर्म समझ लिया, लेकिन धर्म जो है वो तो युद्ध भी है ना जी। अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध करो, स्वधर्म को भूल गए, क्रिया अनुष्ठान लेके रह गए। और जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो युद्ध नहीं किया, तब तक सब समाप्त हो गया था। धर्म जो है वो राजाओं में नहीं चला गया था, खत्म हो गया था इसके कारण। अच्छा अच्छा जी महाराज। अब तीसरा प्रश्न है, हाउ द जायंट ऑफ रिलीजन कैन बिकम पॉलिटिशियन ऑफ आवर कंट्री? ये अभी ऐसा एट प्रेजेंट इट इज हैपनिंग और नॉट? नहीं नहीं, क्या क्या, हाँ वो नहीं। हाउ? हाँ बोलो। हाउ द जायंट्स ऑफ रिलीजन कैन बिकम द पॉलिटिशियन ऑफ आवर कंट्री? नहीं, वो तो महात्मा गांधी का दृष्टांत है। हाँ हाँ, वो तो आपने बताया। हाँ। जी। अच्छा, चौथा प्रश्न है, इन रिटर्न मदर मातृभूमि को इज
रेडी टू मदर अर्थ रिसीव। ठीक से मदर लिखते भी अर्थ नहीं मैंने है। बोला। मदर अर्थ क्यों लिखा वहां पे? क्या अदर का प्रश्न है? मदर इंडिया। मदर ये इंडिया, बताओ। यस करेक्ट। तो मदर तुम्हारे एकाग्रता से ठीक से कुछ लिखते भी ठीक से नहीं करोगे। मेरे माइंड में ऐसा अर्थ आ गया। तो जो अर्थ माइंड में अर्थ आ गया, एकाग्र करके करो। हाँ जी। हाँ तो रेडी टू रिसीव अबाउट व्हाट स्वामी जी इज टेलिंग। रिसीव फिर से क्या? पढ़ो, वो ओरिजिनल पढ़ो तो। ओरिजिनल पेज नंबर 95। हाँ बोलो। फॉर 95 लास्ट लाइन है। लास्ट। हाँ ये जी। India wants to raise herself once more. It is absolutely necessary that she brings out her treasures and throw them broadcast among the nations of the earth. ये And in return, be ready to महाराज receive- यहाँ पे receive what नेशन ऑफ others to अर्थ give है her. ना, इसलिए मैंने लिखा हैं? महाराज इधर नेशंस ऑफ द अर्थ लिखा है, इसलिए मैंने लिखा मदर अर्थ। Nations of the earth. हाँ In इसीलिए return, be ready to receive what others to give her. हाँ हाँ तो इसमें तो क्या ये प्रश्न क्या है तुम्हारा? क्या देने की बात कर रहे हैं स्वामी जी? क्या देना है? धर्म को return? देने की बात कर रहे हैं, धर्म की बात धर्म। कर रहे हैं। हाँ धर्म। हाँ जी धर्म और सेवा, रिनंसिएशन और त्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन ना। हाँ अभी है हाउ कैन वी हेल्प द मासेस टू कम अप। उनको एजुकेशन दो, शिक्षा दो, एजुकेशन दो, एम्प्लॉयमेंट दो। हाँ छठवां प्रश्न है द डिजेनरेशन ऑफ द लॉ एंड कस्टम ऑफ एंशिएंट आर बैड बट दे आर नॉट अलाउड टू कैरी देयर लेजिटिमेट कंक्लूजन। पेज नंबर पेज नंबर 96 है। कहाँ है? The degeneration of India came not because the laws and customs of ancients were bad, but because they were not allowed to carry to the legitimate. जो भारत की पुरानी जो कस्टम्स थी, जो क्रिया अपने जो नियम आदि थे, वो बुरे नहीं थे, वो अच्छे थे, लेकिन उनको पूरी तरह उनको क्रियान्वित करने का अवसर नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा ओके मतलब हम लोगों ने नहीं किया। हाँ हम लोगों ने नहीं किया। गृहस्थों को जो है वो करना चाहिए। गृहस्थों को के धर्म है, लोगों का उन्नति करना है, अतिथि सेवा ही करना है, ये नहीं है और भी कुछ है। ये सब नहीं किया, इसलिए हम पतित हो गए। बहुत सारे हैं, यहाँ पे बताया नहीं उन्होंने क्या है। देवर लॉज एंड कस्टम्स, उनके नियम और आचार वगैरह जो थे वो अच्छे थे, लेकिन उनको हमने अपने जीवन में परिवर्तित नहीं किया, उनको प्रैक्टिस नहीं किया। तो वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? गृहस्थ के धर्म है, सन्यासी के धर्म है, वानप्रस्थी के धर्म है, तो निष्ठा पूर्वक हमने नहीं किया, उसको अवसर नहीं दिया। जी महाराज बराबर। बस हो गए महाराज मेरे प्रश्न। अच्छा अब कौन बचा है? रीता, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, ओके। अब किसी का क्वेश्चन नहीं है, सबके हो गए क्वेश्चन। अच्छा सुनिए, नेक्स्ट टाइम जो है आपसे निवेदन है कि आप 15 मिनट पहले शुरू कर दिएगा। संजय आप महाराज, क्योंकि मुझे 10:15 बजे जाना पड़ेगा। कितने बजे स्टार्ट होगा महाराज? 10:30। मेरा यहाँ पर 10:15 बजे एक पौने 9 बजे। Is that okay? पौने? हाँ 8:30। संजय जी महाराज 8:45 बजे।
अभी स्टार्ट कर दें ठीक रहेगा कि मुझे इसके बाद जाना पड़ेगा? यस यस हाँ हाँ ओके। जी जी महाराज अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नमस्ते नमस्ते। नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन टुडे अन्नपूर्णा। Yeah, that's right. How are you? Are all right? हाँ आर यू ऑलराइट ओके हाँ ओके ओके ओके। महाराज शिवानी बोल रही हूँ। हाँ बोलो। हाँ महाराज, वो 2 क्वेश्चंस थे। हाँ और बोलो। as Swamiji said, this world is a great gymnasium where we come to make ourselves strong. So how we can हाँ। be strong? To learn only स्ट्रॉन्ग worldly यानी things. है अपने They are आदर्श talking- को अपने जीवन में, आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना, जीवन में जो बाधाएं होंगी उसको संघर्ष करना, अपने दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना, ये सारी बातें हैं। इनसे हमारा मसल्स बनेंगे, यानी मसल्स यानी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। तुमने जो महाराज कहा ये है वो पर ठीक नहीं है। हाँ बोलो। Swamiji is talking about worldly things only. ना कहाँ होगा, संसार में जो आए हैं हम, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। इस संघर्ष से हम प्रबल होंगे, बलवान से होंगे। मिलना पड़ेगा। नहीं वो ठीक है, पर वो सिर्फ वर्ल्डली थिंग्स के लिए ना, कि दोनों नहीं चीजें आएंगी। कोई भी किसी भी चीज के लिए, हर चीज के लिए। अरे जैसे आप अगर संसार में हैं और एक ऐसी सिचुएशन आई कि आपको सत्य का पालन करना है और वहाँ बड़ी मुश्किल है सत्य को पालन करने में, तो अगर आप सत्य का पालन करेंगे तो आपका मसल यानी आप स्ट्रांग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सारे जीवन अगर आप नैतिक जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो बाद में जब 40 वर्ष के हो जाएंगे तब आप स्ट्रांग हो जाएंगे कि नहीं होंगे? मानसिक दृष्टि से सेवा और नैतिक जीवन, रिनसिएशन और सर्विस के माध्यम से आप स्ट्रांग बनेंगे। इज दैट ओके और नॉट? हाँ ठीक है महाराज। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन है, as Swamiji said, feel like Buddha, you will become so. So whatever will think will become so. Please explain. क्योंकि एक बार मैंने आपसे पूछा था कि feel like विवेकानंद। हाँ कंटिन्यूसली आप स्वामी विवेकानंद का चिंतन, कंटिन्यूसली स्वामी विवेकानंद का चिंतन करिए, स्वामी विवेकानंद से बताएंगे डेफिनेटली। ये तो फंडामेंटल है, लॉ है। वो महाराज वो व्हाट हो गया की स्टोरी है ना, थैंक यू। रेस्ट पर बी की स्टोरी है, जैसा किसका है समझ। और किसी का है? और क्या और कुछ पूछना था? रेणुका, रेणुका बहन, रेणुका शाह नहीं पूछेगी? नहीं, रेणुका रीता वाधवा, you wanted to say something? नहीं महाराज मेरा एक अच्छा, ये रीता वाधवा, गीता बात। ठहरो ठहरो, तुम्हारे बहुत पूछ लिया। रीता वाधवा, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। जी you wanted to say something? पता नहीं महाराज जी, इट वाज माय सजेशन कि रीता जी जो रामकृष्ण मिशन में यूथ से इंटरेक्ट करती हैं, तो शी गिव अस ए फीडबैक ऑन हाउ द यूथ थिंक्स टुडे। हाँ उसके बारे में हाँ ठीक है, बोलो तो रीता। नहीं महाराज जी, गलती लग रही है। मैं यूथ टुडे, महाराज जी यूथ से नहीं, छोटे छोटे बच्चों से हम लोगों का इंटरेक्शन है एक्चुअली, यूथ से नहीं है। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, शारदा अच्छा। फोरम के बच्चों से Okay, इंटरेक्शन that है। is जी महाराज। नहीं नहीं, that is too small. दैट्स जी टू महाराज। जी Okay, so बंद करें? जी महाराज। जी प्रणाम महाराज। शांति प्रणाम मंत्र, महाराज। प्रणाम महाराज। नमस्ते। शांति। शांति मंत्र महाराज। शांति प्रणाम महाराज। शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।